Hello students, hope all of you are well. So today I am going to discuss about our next topic of series of function, that is the consequences of the series of function. Here I will discuss two most important theorems, that is the interchange of limit and sum as well as interchange of limit and differentiation. In my previous video lecture I have discussed about the interchangeability of limit and integration. So if you missed that video lecture, please follow the video lecture. Also, to understand this topic, you have to follow the video lecture for the interchangeability of limit and differentiation for the sequence of function. Okay, so let's start with the topic. The links in the suggestion box for your better understanding. Now, the first theorem is that the consequences of the uniform convergence. The first theorem is that interchange of limit and the summation or the sum. So what is the statement of the theorem? First try to understand. Let D be a subset of set of all real number R and summation Fn be a uniformly convergent series of functions on D. Let the sum function be F and let x0 belongs to D dash, that is the derived set of D, and limit x tends to x0 Fn x, that is equals to An for all n belongs to natural number. Then two conditions we have to prove. That is the first condition, the series summation An is convergent, and the second condition, limit x tends to x0 f of x, that will be equals to summation of An. So from the second condition we can see that limit x tends to x0 f of x equals to summation An. It is actually equals to limit x tends to x0. What is our fx? Fx is the sum function of the series summation Fn. So we can write down that is equal to summation of Fnx and summation of An. What is our An? An equal to limit x tends to x0 Fnx. So we can see that limit and summations are interchangeable. तो ये थ्योरम का स्टेटमेंट पहले हम लोग समझ लेते हैं. तो स्टेटमेंट क्या कह रहा है, देखो मेरे पास एक सबसेट है D, सबसेट ऑफ सेट ऑफ ऑल रियल नंबर R, एंड हम लोग क्या किए हैं, उसके ऊपर एक सीरीज ऑफ फंक्शन को डिफाइन किया है समेशन Fn, और वो सीरीज क्या हो रहा है, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है डी सेट के ऊपर, और वो सीरीज का जो सम फंक्शन है वो सम फंक्शन है f. अभी अगर कोई लिमिट पॉइंट हम लोगों को मिल जाता है x0 डी सेट का, और अगर हम लोग ऐसे कोई लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू x0 fnx इक्वल्स टू an, देन वी कैन सी दैट समेशन an विल बी कन्वर्जेंट. और दूसरा बात क्या है, limit x tends to x0 fx, that is the sum function of the series of function, this value of the limit is actually equal to the convergence of the summation an, that is the series an, series of positive real. बहुत ही आसान सा थ्योरम है, तो हम लोग आसानी से इसको प्रूव भी करेंगे. तो मेरे पास जो जो इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन से मैं इस थ्योरम को प्रूफ करूंगा. तो पहला इंफॉर्मेशन ये था कि समेशन Fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट है डी सेट के ऊपर और उसका सम फंक्शन है f. तो अगर कोई सीरीज ऑफ फंक्शन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो चुका है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसके ऊपर कॉशी प्रिंसिपल को अप्लाई कर सकते हैं. सो समेशन Fn इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन D टू द सम फंक्शन f. So for epsilon greater than 0 we have a natural number k which is solely depending on epsilon. Hence by Cauchy principle we can say that for all x belongs to D, mod of fn plus 1x plus fn plus 2x dot dot fn plus px, that value is less than epsilon by 2 for all n greater equal to 2 and p equal to 1 to 3. तो मैंने यहाँ पे सिंपली Cauchy प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट था उसको यहाँ पे लिख दिया है यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस के लिए, और एप्सिलॉन का वैल्यू एप्सिलॉन बाय 2 पकड़ के मैंने यहाँ पे लेस देन किया है, ठीक है ना, फॉर ऑल n greater equal to k. Now the second information that we have in our hand, that is limit x tends to x0 fnx equals to an. तो अभी सोचो लिमिट x tends to x0 fnx equals to अगर an हो रहा है और ये सभी n के लिए ट्रू है, तो हम लोग ये लिमिट ऑब्वियसली लिख सकते हैं, लिमिट x tends to x0 fn plus 1x dot dot plus fn plus px, that will be equals to an plus 1, इसका लिमिट हो जाएगा an plus 1. दूसरा लिमिट होगा an plus 2 अप टू fn plus p का लिमिट हो जाएगा an plus p. So we can take the modulus value on both sides. So for all x belongs to D, limit x tends to x0, that is actually equals to mod of fn plus 1x mod of fn plus 2x dot dot fn plus px is actually equal to mod of an plus 1 an plus 2 an plus p.
Now we can see that by 1, this quantity, that is modulus of f of n plus 1x plus f of n plus 2x plus dot dot f of n plus px, this value is actually less than epsilon by 2, and we are taking the limiting case, so the right hand side may be equal to epsilon by 2, or which is obviously strictly less than epsilon. So mod of an plus 1 an plus 2 plus dot dot an plus p, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, मैक्सिमम एप्सिलॉन बाई 2 के साथ इक्वल हो सकता है, तो लेस देन एप्सिलॉन बाई 2 मैंने यहाँ पे लिखा है बाई 1, एंड ऑब्वियसली एप्सिलॉन बाई 2 का वैल्यू एप्सिलॉन से छोटा है, सो लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर इक्वल टू के। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे लिखा है, ये स्ट्रक्चर क्या है, ये स्ट्रक्चर है कॉशी प्रिंसिपल फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ ए रियल सीरीज। सो रियल सीरीज के कन्वर्जेंस का जो कॉशी प्रिंसिपल था उसको मैंने यहाँ पे लिखा है, तो यहां से मैं यहाँ पे कह सकता हूं कि समेशन ए एन क्या हो रहा है, एक कन्वर्जेंट सीरीज हो रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द कॉशी प्रिंसिपल फॉर द रियल सीक्वेंस एंड रियल सीरीज। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट द सेकेंड पार्ट ऑफ द थ्योरम सेज दैट लिमिट x टेंड्स टू x0 f of x दैट विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ ए एन। तो सम फंक्शन का लिमिट x इक्वल टू x0 पॉइंट पे जो होगा, और समेशन ए एन जो मेरा सीरीज है, सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल है, उसका जो सम होगा वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अभी मैं प्रॉब्लम स्टेप 1 पे प्रूफ कर चुका हूं कि समेशन ए एन क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है। तो अगर समेशन ए एन कन्वर्जेंट हो चुका है तो उसका कोई ना कोई सम फंक्शन रहेगा, सम वैल्यू आएगा, ठीक है, ये तो सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल है ना, तो उसका कुछ सम वैल्यू आएगा। तो लेट अस कंसीडर द सम वैल्यू ऑफ दिस सीरीज इक्वल्स टू स्मॉल एस, ठीक है। अभी मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पकड़ रहा हूं जो समेशन ए एन को देता है। तो समेशन ए एन जो सीरीज है मेरे पास, वो सीरीज कुछ ना कुछ सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से ही आ रहा है। तो उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं ऐसे कि लेट अस कंसीडर ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस bn, वेयर bn इक्वल्स टू c a1 प्लस a2 प्लस an। तो ये जो सीरीज था मेरा समेशन ए एन, ये समेशन ए एन जिस सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से आ रहा है वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है मेरा सीक्वेंस bn। तो अभी देखो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम और सीरीज का क्राइटेरिया क्या होता है, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया सेम रहता है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो समेशन ए एन का वैल्यू है स्मॉल एस, तो इस सीरीज का सम वैल्यू है स्मॉल एस, तो इट मींस दैट सीक्वेंस bn जो मेरा सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है उसका लिमिट क्या हो जाएगा, स्मॉल एस हो जाएगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, ठीक है, आसान सा है। अभी मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, दूसरा एक सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम को पकड़ रहा हूं जो सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए है, ठीक है। तो लेट अस कंसीडर ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम सीक्वेंस Sn व्हिच इज इक्वल्स टू Snx इक्वल्स टू f1x f2x प्लस fnx। तो Sn जो है ना, तो वो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है किसके लिए, सीरीज ऑफ फंक्शन के लिए है, ठीक है। अभी देखो गिवन है कि समेशन fn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है सम फंक्शन f पे ऑन द सेट d। तो अगर समेशन fn f पे कन्वर्जेंस हो रहा है यूनिफॉर्मली, तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम सीक्वेंस Sn भी क्या हो जाएगा, लिमिट फंक्शन f पे यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा। सो सीक्वेंस Sn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट ऑन d टू द लिमिट फंक्शन f। तो अगर सीक्वेंस Sn यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है लिमिट फंक्शन f पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट का डेफिनेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। So let us applying the definition of the uniform convergence. So for pre-assign epsilon greater than 0, we must have a natural number k1 which is solely depending on epsilon, such that for all x belongs to d, mod of snx minus fx less than epsilon by 3 for all n greater equals to k1. Okay? तो मैंने यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ फंक्शन का जो यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस का डेफिनेशन है उसको यहाँ पे अप्लाई किया है। क्लियर? अभी देखो एक इंफॉर्मेशन अभी हमने लिखा है, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn इक्वल टू s। तो लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी bn इक्वल टू अगर s हो रहा है तो bn क्या है, bn है मेरा सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स। तो सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर s लिमिट पे कन्वर्जेंट हो रहा है, तो इसका भी हम लोग डेफिनेशन लिख सकते हैं। सो फॉर दैट केस वी हैव एप्सिलॉन फॉर ग्रेटर देन 0, वी हैव ए नेचुरल नंबर k2 सच दैट मॉड ऑफ bn माइनस s विल बी ऑल्सो लेस देन एप्सिलॉन बाई 3 फॉर n ग्रेटर इक्वल टू k2। तो हम लोग यहाँ पे k लिख ले, k इक्वल टू मैक्स ऑफ k1 k2। यहाँ पे जो k1 और k2 निकला है, लेट k इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ k1 और k2। तो हम लोग देख सकते हैं ये दोनों इनइक्वालिटी, जो इनइक्वालिटी 2 एंड 3 है, ये दोनों इनइक्वालिटी k1 से ये स्टार्ट हो रहा है, ये k2 से स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम लोग k इक्वल टू k1 k2 का मैक्सिमम वैल्यू ले लेते हैं
तो inequality number 2 and inequality number 3 will start to converge from n equal to k. So हम लोग n के जगह पे k पुट कर सकते हैं, तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं mod of skx minus fx less than epsilon by 3 for all x belongs to d and mod of bk minus s less than epsilon by 3. ओके, तो इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 4 दे देता हूं. अभी मेरे पास और एक इंफॉर्मेशन है. इंफॉर्मेशन क्या है? mod for all x belongs to d limit extends to x0 fn x equals to an. ठीक है, तो ये मेरा इंफॉर्मेशन था कि x मेरा x0 मेरा लिमिट पॉइंट है d सेट का. तो अगर x0 लिमिट पॉइंट है तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू d लिमिट एक्सटेंड्स टू x0 fn x, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? an के साथ इक्वल हो जाएगा. तो अगर ये सेटिस्फाई हो रहा है तो ये सेटिस्फाई होगा फॉर ईच एंड एवरी n. तो मैं यहाँ पे f1x प्लस f2x प्लस fnx के लिए भी ये फॉर्मूला को अप्लाई कर सकता हूं. तो लिमिट एक्सटेंड्स टू x0 f1x का वैल्यू क्या होगा? a1 होगा. एक्सटेंड्स टू x0 f2x का वैल्यू क्या होगा? a2 होगा. और लिमिट एक्सटेंड्स टू x0 fnx का वैल्यू होगा an. So limit extends to x0 f1x plus f2x plus fnx, that will be equal to a1 plus a2 plus an for all n belongs to natural number. Now you can see that f1x plus f2x plus fnx is actually giving us the sequence of partial sum sequence snx. That is the term nth term of the sequence of partial sum. So it will become limit extends to x0 snx, and on the right hand side this term is actually giving us the sequence of partial sum of real sequence bn, that is bn equal to a1 plus a2 plus an. So we can see limit extends to x0 snx equals to bn for all n belongs to natural number. तो अगर ये लिमिट फॉर ऑल n belongs to natural number सेटिस्फाई हो रहा है तो n की जगह पे अगर हम लोग k पुट कर देते हैं, जो k वैल्यू हमने निकाला है मैक्सिमम ऑफ k1 k2 से, उसके लिए भी क्या होगा? ये लिमिट सेटिस्फाई होगा. दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू x0 skx that is equals to bk for all फॉर n इक्वल टू k. तो यहां से हम लोग देख सकते हैं skx का लिमिट हो रहा है bk. कौन सा पॉइंट पे? x इक्वल टू x0 पॉइंट पे. तो लिमिट ऑफ ए फंक्शन का हम लोग डेफिनेशन जानते हैं, तो वहां से हम लोग क्या करेंगे? अभी डेफिनेशंस को अप्लाई करेंगे लिमिट ऑफ ए फंक्शन. सो फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए डेल्टा ग्रेटर देन 0 सच दैट वी कैन राइट डाउन mod of skx minus bk. This value will be less than epsilon by 3 for all x belongs to deleted neighborhood of x0 intersection d. Deleted neighborhood of x0 intersection d. Obviously it is the limit definition of the limit. तो अभी हम लोग को क्या प्रूफ करना था? जितना भी मेरे पास इंफॉर्मेशन था, इंफॉर्मेशन को मैंने यहाँ पे लिख दिया है. तो अभी मुझको क्या प्रूफ करना है? देख लो. नंबर 2 पे मुझको प्रूफ करना था लिमिट एक्सटेंड्स टू x0 fx. दिस इज एक्चुअली इक्वल टू समेशन ऑफ an. तो समेशन ऑफ an का वैल्यू मैंने यहां पे पकड़ा है s. तो मुझको प्रूफ करना है लिमिट एक्सटेंड्स टू x0 f of x इक्वल्स टू s. तो इसका मतलब ये है fx का लिमिट x0 पॉइंट पे वैल्यू क्या होगा? स्मॉल s होगा. ये मुझको प्रूफ करना है. तो मैं यहां पे क्या करूंगा? सिंपली ट्रायंगल इनइक्वालिटी को अप्लाई करूंगा. सो देयरफॉर mod ऑफ fx माइनस s, इसको मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं mod ऑफ fx माइनस skx प्लस skx माइनस bk plus bk minus s. Now applying the triangle inequality, we can break this in these three parts, and you can see that each and every part is less than epsilon by 3 by the equation number 4 and equation number 5. So मैंने यहाँ पे तीनों epsilon by 3 को पुट किया है और ये वैल्यू लेस देन epsilon हो जाएगा. लेकिन ये सभी x जिसके लिए ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो रहा है, कौन से x के लिए सेटिस्फाई हो रहा है? फॉर ऑल x बिलोंग्स टू डिलीटेड नेबरहुड ऑफ x0 इंटरसेक्शन d. तो यहां से मैं डिक्लेयर कर सकता हूं लिमिट एक्सटेंड्स टू x0 fx का वैल्यू क्या होगा? s हो जाएगा. दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू x0 f of x इक्वल्स टू समेशन ऑफ an. सो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ द लिमिट एंड सम, जो मैं यहां पे तुम लोगों को दिखाया है. दैट इज लिमिट एक्सटेंड्स टू x0 fx इक्वल्स टू समेशन ऑफ an एक्चुअली इक्वल्स टू लिमिट एक्सटेंड्स टू x0 fx का वैल्यू क्या है? fx है मेरा समेशन fn का सम. तो समेशन fnx मैंने लिखा है fx के जगह पे. और an का वैल्यू क्या है? समेशन बाहर होगा और an का वैल्यू होगा लिमिट एक्सटेंड्स टू x0 fnx. So we can see that limit and summation is interchangeable. This theorem is very important for exam and repeated so many times. So if it not appeared in the previous semester, so it must appear in this semester or in this year. Okay, so follow this video lecture and prepare your note.
Now let us try to apply this theorem and to solve a simple problem. So it is given that we have to find out the limit of this summation fn cos nx by n into n plus 1. तो ऐसे करके अगर कोई भी प्रॉब्लम तुम्हारे पास दिया हुआ रहेगा तो तुम लोगों को प्रॉब्लम देख के ही तुम लोगों को पता हो जाना चाहिए कि ये जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ लिमिट एंड सम का प्रॉब्लम है। ठीक है, तो यहां पे मैं उसी थ्योरम को अप्लाई करूंगा। तो इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ लिमिट एंड सम का जो थ्योरम था, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है अभी मैंने तुम लोगों को बताया है कि थ्योरम का स्टेटमेंट ये है कि समेशन एफएन जो है वो समेशन एफएन को पहले यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होना चाहिए। दूसरा बात यह है कि मुझको एक लिमिट पॉइंट ढूंढना है सेट में। ठीक है, और लिमिट पॉइंट ढूंढने के बाद वहां पे मुझको क्या करना है, एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल्स लाना है और सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल का जो सम वैल्यू होगा वो सीक्वेंस ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शन का सम वैल्यू का लिमिट के साथ इक्वल होगा। ठीक है, एक बात मैं यहां पे तुम लोग को बोल देना चाहता हूं, ये लिमिट x टेंड्स टू x0 है तो पर्टिकुलरली x0 इक्वल्स टू 0 लेके हम लोग यहां पे प्रूफ करेंगे। ठीक है, x इक्वल्स टू जो भी वैल्यू होगा तुम्हारे पास तुम वो वैल्यू पुट कर सकते हो। यहाँ पे कुछ वैल्यू डिफाइन नहीं है तो मैं यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 लेके पुट करूंगा, ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूंगा, जनरलाइज कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और कुछ भी वैल्यू अगर तुम्हारे पास है x इक्वल्स टू 1 है या फिर हाफ है या फिर 1/3 है तो उसको तुम यहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, so let us try to prove this problem. So first of all we have to show that this series is uniformly convergent. तो मैंने यहाँ पे fnx पकड़ा है, fnx equals to cos nx by n into n plus 1. So mod of fnx will be equals to mod of cos nx by n into n plus 1, which is obviously less equals to 1 by n into n plus 1. So this term is totally independent of x, so we will consider this equals to mn. And you can understand in which way we are moving. That is, we are moving to the way by applying the Rester's M test, जिसके बारे में तुम लोग जानते हो और बहुत सारा प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया है Rester's M test का। अगर तुम लोग भूल चुके हो तो मेरा प्रीवियस वीडियो लेक्चर फॉलो कर सकते हो। अभी क्या करेंगे, हम लोग समेशन mn को कन्वर्जेंट दिखाएंगे। तो समेशन mn हो रहा है 1 by n into n plus 1। तो मैं यहाँ पे एक सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल चूज करूंगा समेशन vn, जहां पे vn होगा 1 by n स्क्वायर। तो vn निकालने का तरीका तुम लोग जानते हो, दैट इज द पावर ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ n विल बी टेकन एंड बाय व्हिच वी विल फाइंड आउट द समेशन vn। तो यहाँ पे n का न्यूमरेटर का पावर है 0 और नीचे डिनोमिनेटर में n का पावर है 2, तो डिफरेंस क्या हो रहा है, 2 हो रहा है। तो vn हो जाएगा 1 by n स्क्वायर, नीचे पावर ज्यादा है तो 1 by n स्क्वायर नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा। ठीक है, तो समेशन vn 1 by n स्क्वायर है जो एक p सीरीज है और p इक्वल टू 2 है, समेशन 1 by n स्क्वायर। तो p इक्वल टू 2 अगर है तो इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, सो ऑब्वियसली इट इज कन्वर्जेंट। एंड इफ यू टेक लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी mn by vn, दैट यू कैन सी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 1 बिकॉज डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर पावर विल बी सेम व्हेनेवर you can take the limit mn by vn. This equal to 1, obviously not equal to 0. So by comparison test with limit form, we can declare summation mn is a convergent series. तो अगर summation mn convergent हो चुका है तो summation fn क्या हो जाएगा, uniformly and absolutely convergent हो जाएगा by Rester's M test. So summation fn भी क्या हो चुका है, uniformly convergent हो चुका है for all x belongs to real number r. ठीक है, अभी देखो लिमिट x टेंड्स टू x0 समेशन fnx का वैल्यू क्या होता है, समेशन लिमिट x टेंड्स टू x0 fnx हो जाता है फॉर x0 बिलोंग्स टू द रियलाइज्ड सेट। तो यहाँ पे कुछ सेट नहीं है तो मैं यहाँ पे रियल नंबर्स को लेके चल रहा हूं, तो कोई रियल नंबर का सभी पॉइंट्स क्या होता है, लिमिट पॉइंट होता है। तो मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली एक पॉइंट ले लेता हूं 0। सो 0 इज द लिमिट पॉइंट ऑफ r. नाउ लिमिट x टेंड्स टू x0 समेशन fnx दैट विल बी इक्वल्स टू समेशन ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 0 cos nx by n into n plus 1 अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ दिस। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने ये फॉर्मूला को अप्लाई करके इसका वैल्यू लिखा है। तो अगर तुम लोग लिमिट x टेंड्स टू 0 ले लेते हो तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, cos ऑफ n x दैट इज cos ऑफ n0 cos ऑफ 0 दैट इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे तुम लोग सोच सकते हो कुछ भी वैल्यू अगर यहाँ पे गिवन है x का, अगर तुम लोग यहाँ पे cos का वैल्यू वहां पे सब्स्टिट्यूट कर देते हो तो वो तो हमेशा कांस्टेंट ही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 0 लेके कर रहा हूं, अगर एग्जाम पे 1 2 या फिर हाफ कुछ भी वैल्यू दे देगा तो तुम लोग उसको यहाँ पे पुट कर सकते हो और cos को क्या करना है, हम लोग को बाहर ले लेना है। ठीक है, ऐसे करके। ठीक है, अगर 0 नहीं है 1 है तो वो सीरीज के अंदर ही रहेगा, cos ऑफ n हो जाएगा n by 2 होगा। ठीक है, तो ऐसे करके मुझको सीरीज लिखना है और उसका कन्वर्जेंस चेक करना है।
क्लियर? तो यहाँ पे समेशन 1 बाई एन इंटू एन प्लस 1 आ जाता है। तो ये सीरीज तो तुम लोग जानते हो, इसका कन्वर्जेंस हम लोग प्रूफ किए हैं, जो पहला प्रॉब्लम था सीरीज ऑफ पॉजिटिव रियल्स का। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम कंस्ट्रक्ट करूंगा। तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का समेशन क्या होगा, nth टर्म तक। अगर n इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म आ जाता है 1 बाई 1 इंटू 2। n इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं तो टर्म आ जाता है 1 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे करके n इक्वल टू n पुट करेंगे तो आ जाएगा 1 बाई n इंटू n प्लस 1। सो ये हो जाता है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम फॉर दिस सीरीज। ठीक है, तो ये सीरीज का वैल्यू हम लोग, सीक्वेंस का वैल्यू हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम का। दैट इज 1 बाई 1.2 को लिख सकते हैं 1 इन माइनस हाफ, इसको लिख सकते हैं हाफ माइनस 1 बाई 3। ऐसे करके अगर लिखेंगे तो तुम लोग देख सकते हो ये टर्म्स कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म बच जाएगा। दैट इज 1 माइनस 1 बाई n प्लस 1। सो इफ यू टेक द लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी, Sn विल बी इक्वल्स टू 1। सो लिमिट x टेंस टू 0, समेशन n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी cos nx बाई n इंटू n प्लस 1 इक्वल्स टू 1। एग्जाम में ये प्रॉब्लम भी आया है और x इक्वल टू 0 देके ही आया है, तो इसीलिए मैं x इक्वल टू 0 लेके ये प्रॉब्लम तुम लोगों के पास इस वीडियो लेक्चर में दे रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट मेरा जो थ्योरम है आज के लिए, जो लास्ट थ्योरम है वो है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैं टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशंस के बारे में तुम लोगों को बताया था, तो और ये थ्योरम है टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन, जो बहुत ही एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। तुम लोग जानते हो टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन फॉर द सीक्वेंस ऑफ फंक्शन। उस वीडियो लेक्चर को तुम लोग को जरूर फॉलो करना है ये थ्योरम को समझने के लिए। और एक बात मैं तुम लोग को बताना चाहता हूं, तुम लोग जानते हो कि वो थ्योरम कितना लार्ज था, लेकिन वो थ्योरम बहुत ही एक बड़ा थ्योरम है, लेकिन हम लोग यहाँ पे आसानी से इसको प्रूफ कर देंगे। देखो कैसे हम लोग प्रूफ करते हैं। सो लेट अस कंसीडर ए क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल I, क्लोज्ड इंटरवल AB, and for all n belongs to natural number, let fn be differentiable for each n over I. Okay, if the series of function f1 dash plus f2 dash plus fn dash dot dot, that is the summation fn dash, converges uniformly on I to the sum function g, and the series summation fn converges at least one point x0 belongs to I, then the series summation fn converges uniformly on I to a function s such that s dash x will be equals to gx for all x belongs to I. तो स्टेटमेंट मैं तुम लोगों को समझा देता हूं। पहले देखो, मेरे पास एक क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल है, क्लोज्ड एंड बाउंडेड इंटरवल AB, एंड फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर ईच fn इज डिफरेंशिएबल ऑन I. ओके, अभी मेरे पास एक सीरीज है जो सीरीज ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ द सीरीज ऑफ फंक्शन है। दैट इज समेशन ऑफ fn डैश, ये क्या है, कन्वर्ज हो रहा है यूनिफॉर्मली ऑन I, और उसका सम फंक्शन क्या है, उसका सम फंक्शन है g। जो समेशन fn डैश है उसका सम फंक्शन है g। ठीक है, और दूसरा एक इंफॉर्मेशन है, दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि समेशन fn जो है मेरा सीरीज ऑफ फंक्शन, वो सीरीज ऑफ फंक्शन एटलीस्ट 1.x0 बिलोंग्स टू I के लिए कन्वर्जेंट भी हो रहा है। और वो कहां पे कन्वर्जेंट हो रहा है, s पे कन्वर्जेंट हो रहा है। किसका, s पे कन्वर्जेंट हो रहा है। तो हम लोग को प्रूफ करना है s डैश x दैट विल बी इक्वल्स टू gx एज वेल एज समेशन fn विल बी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट टू द फंक्शन s। ठीक है, तो हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले में हम लोग क्या करते हैं, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम पकड़ लेते हैं। लेट अस कंसीडर ए सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, सीक्वेंस Sn where Snx equals to f1x plus f2x plus fnx, sequence of partial sum for the sequence series of function, okay, for all x belongs to I. तो अभी मेरे पास एक इंफॉर्मेशन है कि fn क्या हो रहा है, डिफरेंशिएबल हो रहा है फॉर ईच n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सो हर एक fn अगर डिफरेंशिएबल होगा तो हर एक Sn भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा। तो ईच Sn इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल ऑन I। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। सो Sn डैश x क्या हो जाएगा, f1 डैश x, f2 डैश x, fn डैश x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू I। तो अभी देखो समेशन fn डैश क्या हो रहा है, कन्वर्जेंट हो रहा है यूनिफॉर्मली ऑन I टू द सम फंक्शन g। ये भी इंफॉर्मेशन था मेरे पास। तो अगर समेशन fn डैश यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो रहा है तो समेशन fn डैश का जो सीक्वेंस ऑफ फंक्शन है, सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है, वो भी क्या होगा, लिमिट फंक्शन g पे कन्वर्जेंट होगा। तो समेशन fn डैश का सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम क्या है, Sn डैश है। तो Sn डैश क्या हो जाएगा, कन्वर्ज हो जाएगा यूनिफॉर्मली टू द लिमिट फंक्शन g। ठीक है, तो टू द लिमिट फंक्शन g पे ये कन्वर्जेंट हो रहा है।
अभी देखो समेशन एफएन क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है एटलीस्ट 1.x0 बिलोंग्स टू आई। तो एटलीस्ट 1.x0 बिलोंग्स टू आई पे अगर कन्वर्जेंट हो रहा है तो ये किस टाइप का कन्वर्जेंस है, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट है। तो समेशन एफएन अगर पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट हो रहा है एटलीस्ट 1 पॉइंट पे, तो उसका जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था दैट इज सीक्वेंस एसएन, वो भी क्या करेगा, पॉइंट वाइज कन्वर्जेंट होगा x0 बिलोंग्स टू आई पे। Hence by we can apply the interchangeability of limit and differentiation of the sequence of functions, जिसके बारे में हम लोग प्रूफ किया है, बहुत जो लार्ज थ्योरम था। तो वो थ्योरम का हेल्प लेके हम लोग डायरेक्टली प्रूफ कर सकते हैं कि सीक्वेंस एशन क्या हो रहा है, कन्वर्ज हो रहा है यूनिफॉर्मली ऑन आई टू ए लिमिट फंक्शन एस। ठीक है, तो सीक्वेंस एशन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा आई पे टू द लिमिट फंक्शन एस। तो अगर सीक्वेंस एशन यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होगा लिमिट फंक्शन एस पे, तो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है एसएन, तो इसका सीरीज क्या है, समेशन एफएन है। तो समेशन एफएन क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट हो जाएगा सम फंक्शन एस पे। मोर ओवर बाय दैट थ्योरम वी कैन नो दैट एस डैश टेक्स, जिसका वैल्यू क्या हो जाता है, ये जो सीरीज सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम था एसएन डैश टेक्स, उसका लिमिट के साथ इक्वल हो जाता है। तो एस डैश टेक्स दैट विल बी इक्वल्स टू जीएक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आई। हियर्स द थ्योरम। एक बात तुम लोग के दिमाग पे अभी चल रहा है कि सर ने कहा है हम लोग को ये थ्योरम को डायरेक्ट अप्लाई करना है यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट करके रखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो थ्योरम प्रूफ पे आता है इसका जनरली मार्क्स रहता है 3 मार्क्स। तो इसके लिए हम लोग को वो थ्योरम का प्रूफ करने की कोई जरूरत नहीं है, हम लोग उस थ्योरम का स्टेटमेंट लिखेंगे, स्टेटमेंट लिख देना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ लिमिट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ फंक्शन, इसमें तुम लोग को क्या करना है, उस थ्योरम का स्टेटमेंट को लिख देना है। स्टेटमेंट को लिख दो, लिख देने के बाद कोई भी नंबर डिडक्ट नहीं होगा, ठीक है। उस थ्योरम का एप्लीकेशन ही ये थ्योरम है, क्लियर। तो ये थ्योरम से हम लोग को क्या दिखने को मिलता है वो बात मैं तुम लोग को बता देना चाहता हूं। हम लोग को यहाँ पे दिखने को मिलता है कि f1x प्लस f2x प्लस डॉट डॉट, ये जो सीरीज था मेरा, इसका सीरीज का साम था sx, ठीक है, जो मैंने पहले तुम लोग को बताया है। तो अगर हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं बोथ साइड पे, तो हम लोग को कुछ इस तरह दिखता है, ddx ऑफ f1x प्लस ddx ऑफ f2x दैट इज इक्वल टू ddx ऑफ sx। तो ddx को कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f1x प्लस f2x दैट इज इक्वल टू समेशन ऑफ fn। और इसको अगर हम लोग ब्रेक कर देते हैं तो ये क्या मिल जाएगा, समेशन n इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी ddx ऑफ fnx, ठीक है। क्योंकि sn डैश x क्या था, f1 डैश x, f2 डैश x, fn डैश x। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन हो रहा है। दैट इज द टर्म बाय टर्म डिफरेंशिएशन इज एप्लीकेबल ऑन द सीरीज ऑफ फंक्शन व्हिच आर सैटिस्फाइंग द अबव कंडीशन। So with this the lecture for today ends. If you like this video then subscribe this channel, give some like, share with all of your friends and keep learning.